दोस्तों कुछ साल पहले मुझे एक खास मौका मिला और वो मौका था कैलाश मानसरोवर जाने का। ऐसे ही किसी दोस्त ने बताया कि कैलाश मानसरोवर बड़ी खूबसूरत जगह है, सुना हमने भी था लेकिन कभी हिम्मत नहीं। और जब उसने कहा कि सर अभी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है तो मैंने भी रजिस्ट्रेशन करी और किस्मत देखिए मेरा नंबर भी लग गया पहले लॉट में। हजारों आते हैं, सैकड़ों उसमें जाते हैं, तो मेरा नंबर उसमें पड़ गया और जो बैच मैंने चाहा वो बैच मुझे मिल गया। और इसकी सारी फॉर्मेलिटी करने के बाद में जून जुलाई 2019 में कैलाश मानसरोवर गया मैं। तो मैं आज इस वीडियो में आपको वो पुराने वीडियो से बनाया हुआ एक आज मैं वीडियो दिखाऊंगा। और ये जो मैं बता रहा हूँ एक इंफॉर्मेशन है उसके बारे में। मैं आपको बताना चाहूँ कि जो यात्रा है वो भारत का विदेश मंत्रालय करवाता है और ये साल में एक बार इसका रजिस्ट्रेशन खुलता है लगभग अप्रैल में। लेकिन 2019 में किन्हीं राजनीतिक कारणों से और स्ट्रेटेजिक रीजन से ये शुरू नहीं हो पाई है और मैं उस आखिरी जो यात्रा हुई थी उसी समय में गया था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत टफ यात्रा है, 21 दिन का टूर रहता है लेकिन इसमें काफी तैयारी करनी पड़ती है। इस ब्लॉग को बनाते वक्त मेरे पास कुछ लिमिटेशंस हैं जिसके बारे में आपको पहले बता देता हूं कि इसके कुछ ही वीडियो मेरे पास थे जिनको मैं ब्लॉग में कंपाइल कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास जो फोटोग्राफ है उनका मैं इस्तेमाल कर रहा हूं और उसी में आपको मैं इन्फॉर्मेशन इस यात्रा की दूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसके बावजूद जो फीलिंग्स है इस यात्रा की वो आपके सामने तक और इस यात्रा में आने वाली मुश्किलात और चैलेंजेस का मैं आपके साथ जिक्र करूंगा। उम्मीद है कि आपको इन सब के बावजूद ये ब्लॉग पसंद आएगा। किम पहुंचने पर हमारा ट्रेडिशनल वेलकम किया गया और होटल में रुके। होटल से हमें माउंट कंचनजंगा का खूबसूरत व्यू नजर आया। सुबह अपने साथियों के साथ मॉर्निंग वॉक की एंड हैड एन एक्लिमेटाइजेशन वॉक अप टू चांगू लेक। Sherathang was our last acclimatization point from where we moved towards Nathula and from Nathula we entered into China. This is Yamdwar और यहाँ से परिक्रमा शुरू होती है। I have completed around 4 kilometers of my journey from Darchin to Derafuk. The approximate distance between Darchin to Derafuk is about 12 kilometers. By that way, I have completed around 1/3 of my trek. The weather is pleasant, sky is clear, you can see. In the way, I am lucky enough to see many kinds of Himalayan birds. And one of them was warhead goose, which can fly even over Mount Everest. And some animals. Meet you again. Thank you. एक बार फिर मैं हाजिर हूँ। You can see the northern face of the Mount Kailash. I'm just switching over my camera to that position. See, this is the north face of Mount Kailash. दोस्तों रास्ते में हमें दुनिया के सबसे ऊंचे माउंटेन देखने को। Hi. So friends, I'm back again. Just below the Mount Kailash, I've just finished my lunch. The lunch mean 3 rotis and mixed veg with little achar and a slice of ginger. You can see the partner of my lunch are, you can see there. They're just fighting for a loaf of bread. See there. And see the seagull. They're waiting for their meals there. My friend, Mr. Harish Gandhi, is also enjoying my lunch here. Yeah, he's saying that he's enjoying his lunch, and he's also sharing his lunch with that little thrush. Sparrows. Yes, the mountain sparrows. The destination of today's destination, Derafuk, is around 2.5 kilometers from this place. So next time, we'll see you there. Goodbye for then. So finally, here I am in Derafuk, where I'll stay for the night. Oh, it's very cold. It's around 16,500 feet, and ultimately we
one side you can see the open valley with the river coming, the icy, totally icy river. The ice is melting into the river, and in front of the camera is one of the monastery of the area. Let's come to the Kailash. This is the Kailash. This is the divine. Friends, I have reached Darafuk. You can hear the sound of the wind. It's very cold and it's almost difficult to hear each other. And also, it's impossible to record the voice. So, hear the sound of the wind. Gave us the opportunity to come and had the eternal solace. Tomorrow the journey is tougher and longer one, because we have to cross 19,000 plus feet Dolma Pass. The journey is about 19 kilometer, and approximate 4 kilometer is the upward steep height. So now it's the sunset, and after taking dinner we will be into the bed and waiting for the tomorrow's voyage. Thank you very much. दोस्तों, कैलाश परिक्रमा के दौरान देखने में आता है कि कैलाश पर्वत अलग अलग दिशाओं में अलग अलग तरह से नजर आता है। आमतौर पर जो पिक्चर्स में दिखाया जाता है वो इसका उत्तरी फेस है, और बाकी ये बहुत खूबसूरत नजर आता है, और इसका ये नज़ारा डेराफुक से दिखता है। अभी हम पहुंचे हैं डोलमा पास। ये कैलाश परिक्रमा का हाईएस्ट पॉइंट है और इसकी हाइट लगभग 19,000 फीट है। डोलमा पास को क्रॉस करते वक्त तो ऐसा लगता है मानो खून शरीर में ही जम गया है, इसलिए गौरीकुंड तक पहुंचते पहुंचते एक रास्ता बनता है। गौरीकुंड से चल के हम अभी जुजुनपुई पहुंचे हैं, जहां पर परिक्रमा का आखिरी नाइट हॉल्ट है। यहाँ पोर्टर से विदा लेता हूँ और खड़े खड़े थकान भी थोड़ी दूर कर लेता हूँ। Today we have completed the parikrama and have come back to our base. From base now we are in a place called Khugu. Khugu is just on the bank of Lake Mansarovar, and I am taking this report on the bank of this holy lake, Kansi. मैं लेक मानसरोवर के किनारे पहुंच चुका हूं। This is Lake Mansarovar. In the backdrop, you can see, rather it is in the clouds, the Mount Kailash. It's a large, huge lake with a circumference of around 80 plus kilometers, and the depth of the lake is around 300 feet. Today and tomorrow we'll stay here, and day after tomorrow we'll start our return journey. Thank you. हमारे टूर गाइड फोटोग्राफी के लिए हमें कुछ स्वैम्प एरिया में लेकर गए। इस वक्त हम मानसरोवर लेक के किनारे हैं। कुछ फोटोग्राफी करने के लिए इरादे से निकले थे। ये हम सब टीम मेंबर, हमारे द फोटोग्राफर्स ऑफ द बैच and with Chinese friends, now having a taste of sweet water of Lake Mansarovar. And really the water was very tasty and sweet. Today is our second day in the Mansarovar area. Thank you. ये लेक काफी बड़ी है और कई आयाम पेश करती है। And sunrise over it is really a memory to cherish. यहाँ पर डॉक्टर वेंकटेश ने यज्ञ हवन करवाया। मानसरोवर परिक्रमा के साथ हमें राक्षस ताल भी देखने को मिला। When we were moving along Lake Mansarovar, we found many money stones lying across the banks of Lake Mansarovar. The money stones are inscribed with the mantras Om Name Padme Hum and are used as a form of prayer and to mark routes of landmarks. और हाँ, रास्ते में मौका मिलने पर कुछ मस्ती भी जरूर की हमने। तिब्बत पठार पर सनराइज देखना वास्तव में एक अनुभूति है। वापसी पर सिंगास्ते के पास उस वक्त रेस्ट किया।
At Kangma, we had the last night in the Tibet. I'm thankful to my guys who made this journey a memorable journey. And ultimately, we reach Gangtok, where this journey will culminate. दोस्तों, इस ब्लॉग में मैंने आपको अपने कैलाश यात्रा के अनुभवों के बारे में बताया और मैंने कुछ चीज़ें आपसे शेयर की जो कैलाश यात्रा को एक महान यात्रा में पेश करती हैं। अभी कुछ दिन पहले ये खबर लगी है कि यात्रा इस साल फिर से होने जा रही है। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि अगर ज़िंदगी में मौका मिले तो इस तरह की यात्रा पर ज़रूर जाना चाहिए। ये आपको एक आत्मिक शुद्धि ही नहीं देता है, आपको एक शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता और स्पिरिचुअलिटी को असेस करने का एक ख़ास मौका देता है। तो इसके साथ ही मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अपने कमेंट जरूर शेयर करें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय भोलेनाथ।